Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20 और 21 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में है एंड कोल्डिंग म्यूजियम जो कि डेनमार्क में है. इन दोनों के बीच में भी एक MOU साइन हुआ जहाँ पे बात की गई कि जो सिल्वर इक्विपमेंट्स हैं या फिर सिल्वर ट्रेजरी हैं, जो सिल्वर आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको शोकेस किया जाएगा इस एग्जीबिशन में जो कि मार्च में होगा 2023 में. आई रिपीट, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल म्यूजियम जो कि इंडिया का है, इंडियाज नेशनल म्यूजियम जो कि न्यू दिल्ली में है. इन्होंने एक अभी MOU साइन किया किसके साथ? कोल्डिंग म्यूजियम के साथ. ये कोल्डिंग म्यूजियम कहाँ है? डेनमार्क में है. इन दोनों के बीच में क्या MOU साइन किया गया कि जो फाइनेस्ट और बेस्ट सिल्वर आर्टिफैक्ट्स होंगे उनको शोकेस किया जाएगा एक एग्जीबिशन में. और ये एग्जीबिशन कब है? मार्च 2023 में. ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ 200 फाइनेस्ट सिल्वर आर्टिफैक्ट्स इस कलेक्शन में से ऑफ डेनिश एंड इंडियन आर्टिफैक्ट्स में से शोकेस किए जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, समझ गए, याद रखेंगे इसको. फिर अगर मैं डेनमार्क की ही बात कर रहा हूँ तो ज़रा बताओ डेनमार्क की कैपिटल कौन सी है? कोपनहेगन. ठीक है, वेरी गुड. लेकिन यहाँ पे करेंसी कौन सी आ जाती है? वो है डेनिश क्रोन, जिसको DKK के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, डेनिश क्रोन ये आपकी करेंसी रहेगी. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स जिसको बोलते हैं NESTS. इन्होंने अभी एक MOU साइन किया 1M1B जो कि है 1 मिलियन 1 बिलियन फाउंडेशन, मतलब 1 बिलियन फॉर 1 बिलियन फाउंडेशन का यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं 1 मिलियन टीचर फॉर 1 बिलियन स्टूडेंट्स. इन दोनों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक MOU साइन किया गया ताकि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं यहाँ पर टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड किया जाए, उनको एक्सपोजर दिया जाए इन द फील्ड ऑफ AR, इन द फील्ड ऑफ
VR जो कि आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी है, ताकि जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको से बच्चे और टीचर्स अवेयर रहें, और जब वो इनको एक दूसरे को पढ़ाएंगे, टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनको वहाँ पे उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे और उनको नॉलेज हो जो कि अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि बच्चों को जो अब फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर में न्यू टेक्नोलॉजीज पे ही वर्क करना होगा। ऑलराइट, तो इसीलिए ये MOU साइन किया गया, याद रखेंगे। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन फाउंडेशन के साथ ये MOU साइन किया गया टू ट्रेन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। हाईली इंपॉर्टेंट। अगर यहीं पे बात करें तो असित गोपाल जी, ये कमिश्नर है नेस्ट के, इन्होंने ये साइन किया था इन प्रेजेंस ऑफ मानव सुबोध जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ 1B एट नेस्ट हेडक्वार्टर। ये MOU साइन किया गया था न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया ने, पहले तो G20 की बात कर लेते हैं। इससे पहले G20 की प्रेसिडेंसी अभी किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास। अब किसके पास हो जाएगी? इंडिया के पास हो जाएगी। इंडिया ने ही अभी, याद रखेंगे, एक नया थीम भी लॉन्च किया है G20 की, वो क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। फिर याद रखेंगे जो 17वीं एडिशन थी G20 समिट की, वो तो हुई थी बाली, इंडोनेशिया में। जो 18वीं समिट थी वो कहाँ पर होगी? वो होगी आपकी सितंबर मंथ में होगी, न्यू दिल्ली में होगी, इंडिया में। और इंडिया के पास प्रेसिडेंसी कब से कब तक है? 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रहेगी G20 की। तो ये तो हो गई ये सारी बातें। अब आ जाते हैं SCO पर। इंडिया ने अभी SCO के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया, फॉर अ सिक्योर SCO। ठीक है, और सिक्योर की आपको एक टर्म याद रखना है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था, 2018 में दिया गया था। और सिक्योर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट इन, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट। ये आपको सिक्योर की फुल फॉर्म याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है, या फिर इंडिया क्या करेगा? आप इंडिया के पास वो पहला बार, इंडिया के पास पहली बार प्रेसिडेंसी होगी SCO की, ये भी याद रखना है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विल प्रिजाइड ओवर द SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, जो कि सितंबर 2022 में होगी और सितंबर 2023 तक चलेगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगर यहीं पे मैं बात करूं 2022 सितंबर में, जो कि 22वीं मीटिंग थी SCO काउंसिल ऑफ हेड की, जो कहां पर? उज्बेकिस्तान में हुई थी। वहां पर इंडिया ने टुक ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द SCO फ्रॉम उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के पास थी पहले SCO की प्रेसिडेंसी, अब उज्बेकिस्तान से किसने ले ली है? इंडिया ने। और फिर इन्होंने ही एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की SCO की, हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगर SCO की बात की जा रही है, SCO कब बना था? 15 जून को बना था, 2001 में बना था, शंघाई चाइना में बना था। लेकिन अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा SCO का, तो वो बीजिंग चाइना में है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन है? राजीव कुमार। और अगर आपको याद हो तो इन्हीं को एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पे लेके जाया गया था नेपाल इलेक्शन में, कि ये आप ये बाहर से इनको चेक कीजिए, ठीक है, आप एक ऑब्जर्वर की तरह काम कीजिए। अब दूसरा न्यूज़ आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इनॉग्रेट की 2 दिन लंबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि थी आपकी रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज पर। आई रिपीट, किस पर बेस्ड थी ये 2 दिन लंबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के ऊपर ये बेस्ड थी आपकी थीम। इस थीम पे बेस्ड थी ये आपकी 2 दिन लंबी कॉन्फ्रेंस, जो कि कब थी? 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को। हाईली इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नवी ग्रुप और पिरामल फाइनेंस। ये एक को लेंडिंग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, जो कि डिजिटल पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करेंगे लोगों को। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, जब ये लोन प्रोवाइड करेंगे तो इनके पास कुछ फंडिंग अमाउंट होनी चाहिए। उस फंडिंग में से देखा जाए तो 80% पिरामल फाइनेंस देगा और 20% नवी ग्रुप देगा। ये जो डिजिटल पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डिजिटल पर्सनल लोन 20 लाख रुपए तक के होंगे, 20 लाख। और इनका जो टर्म पीरियड होगा ना, वो होगा 6 साल का। 6 साल का मतलब 72 महीने तक ये इस ग्रुप इसको ले सकते हैं, ठीक है, लोन को। ऑलराइट, फिर आ जाते हैं
कितनी फंड कौन सा है 80% और दूसरा जो आपका नवी ग्रुप है ये 20%। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ साथ एक और न्यूज याद रखेंगे, कॉलिंस इंडिया को, हार्पर कॉलिंस इंडिया को बेस्ट पब्लिशर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मिला है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे महिंद्रा ग्रुप। महिंद्रा ग्रुप ने भी बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ एक एमओयू साइन किया ताकि जो वीमेन एम्पावरमेंट है ना उसको बढ़ाया जा सके, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सके, वीमेन को सपोर्ट किया जा सके, उनको हेल्प किया जा सके कि वो कैसे पैसे का लेन देन संभालें, कैसे अपने पैसे को ग्रो करें, कैसे सेव करें, क्या इंपॉर्टेंस रहती है मनी की, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही महिंद्रा ग्रुप ने ये एक एमओयू साइन किया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। ये 2 साल का एक इनिशिएटिव कह सकते हैं जिसके अंडर ये सारी चीज़ें की जाएंगी। इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नमेंटल यहाँ पर इस पर वर्क किया जाएगा और अराउंड 1 मिलियन वीमेन को यहाँ पे हेल्प किया जाएगा फ्रॉम 2026। यहीं पे याद रखेंगे अनीश शाह। अनीश शाह मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं महिंद्रा ग्रुप के। इन्होंने ये साइन किया एमओयू हरी मैनन के साथ जो कि डायरेक्टर हैं बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन का इंडिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली इंडिया को अभी रिसेंटली एक अवार्ड से ऑनर किया गया जिसका नाम है एक्सेल अवार्ड। इसको कहते हैं एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड। हाईली इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर मैं कंट्री कैटेगरी की बात करूं, पूछा जाए कि कंट्री कैटेगरी में, मतलब कंट्री कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली अवार्ड्स को जीता, फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स को, तो वो रहेगी हमारी बिलव्ड इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड रहेगा, याद रखेंगे। इस अवार्ड को सम्मानित किया गया था ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग जो कि कहाँ पर हो रही थी, पटाया में। और पटाया कहाँ पर है, थाईलैंड में। ठीक है, पटाया थाईलैंड में ये कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर इंडिया को ओनली कंट्री जिन्होंने रिसीव किया एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। फिर इंडिया की एक स्कीम है मिशन परिवार विकास। इट इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ इंडियाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि एम करती है टू एड्रेस द अनमेट फैमिली प्लानिंग नीड्स एंड अनमेट स्पेसिंग नीड्स ऑल्सो हैव ड्रॉप्ड लेस देन 10%। एंड जो कॉन्ट्रोसेप्टिव यूज़ किया जा रहा है इंडिया में उसका रेट देखा जाए तो वो बढ़ गया है फ्रॉम 54% टू 67%। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सुमित्रा चरथ राम अवार्ड की। सुमित्रा चरथ राम अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, अभी एक कथक वेटरन है उमा शंकर जी, उनको सम्मानित किया गया विद दिस अवार्ड। वो किससे बिलोंग करती हैं, कथक डांस से बिलोंग करती हैं। एंड इन्हीं को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस में बढ़ावा लाने के लिए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ही सुमित्रा चरथ राम अवार्ड से सम्मानित किया गया उमा शंकर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया टेन्योर ऑफ ईडी डायरेक्टर, ईडी के चीफ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ संजय कुमार मिश्रा का 1 साल के लिए इनको एक्सटेंशन और मिल गया है टिल नवंबर 2023। अब इनकी 5 साल की टोटल सर्विस हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 17 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है टेन्योर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर चीफ संजय कुमार मिश्रा 18 नवंबर 2023 तक। और दिस विल बी संजय कुमार मिश्रा 5th ईयर एज द ईडी के चीफ। ऑलराइट, याद रखेंगे। एसीसी के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट अप्रूव करी गई थी। संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं एंड इनको अपॉइंट किया गया था ईडी चीफ इन नवंबर 2018 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। लेकिन उनके बाद इनको एक्सटेंशन मिलता जा रहा है, पहले कोविड की वजह से, और अब इनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, एंड मिश्रा's tenure एज ईडी डायरेक्टर वाज आल्सो एक्सटेंडेड फॉर अ ईयर इन नवंबर 2021। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। 19 नवंबर को हम वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे।
ठीक है, रीज़न बीइंग क्योंकि अभी भी पूरे वर्ल्ड में हम जानते हैं कि 8 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया ने वर्ल्ड ने क्रॉस कर ली है, लेकिन स्टिल उसमें से 3.6 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके पास लैक ऑफ एक्सेस है फॉर प्रॉपर सैनिटेशन। अगर आपको याद हो, इंडिया में भी जब स्वच्छ भारत मिशन हम लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर एक मेन रहता है ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब हम खुले में शौच ना करें, उसके लिए एक प्रॉपर टॉयलेट हो। ऑलराइट, अगर खुले में शौच करेंगे वो कहीं ना कहीं बीमारियों को अट्रैक्ट करता है एंड फिर वो सोशल भी नहीं रहता है, जैसे महिलाएं वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेंगी। ठीक है, अगर कोई खुले में शौच कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक एक ठीक चीज़ नहीं है, सोशली उसको अप्रूव नहीं किया भी जाता। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ थी, तो फिर इसीलिए एक स्कीम भी लॉन्च की गई थी कि हर घर में हम टॉयलेट बनाएंगे। ठीक है, किसी भी घर में ऐसा ना हो कि टॉयलेट ना हो। टॉयलेट अगर किसी को अपने घर में बनाना हो तो सरकार उनको हेल्प करती थी, सरकार उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करती थी। ऑलराइट, तो याद रखेंगे वर्ल्ड टॉयलेट डे आपका 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर एक थीम याद रखेंगे वर्ल्ड टॉयलेट डे की, वो है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। क्या याद रखेंगे? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड टॉयलेट डे की, जो कि हम 19 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और इससे पहली बार फर्स्ट टाइम ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 19 नवंबर 2013 में ऑब्जर्व किया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? न्यूयॉर्क में, यूएसए में। और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर भी यूनाइटेड न्यूयॉर्क में ही है, यूएसए में। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। फिर एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है, दो हम इसको 19 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इंडिया में भी इसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंडर लाया गया था। स्वच्छता रन बिल यहाँ पे एक लॉन्च की गई थी 19 नवंबर को ही, ताकि जो हम ओपन डेफिकेशन फ्री है, टॉयलेट के यूज़ है, इसको बढ़ावा दे सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल मेंस डे। मेंस की जो एक कल्चर है, मेंस का एक जो पॉलिटिकल व्यू है, इनके हम जो वेलबींग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इनकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कि मेन भी एक मेंटल इंपॉर्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि इनको भी ये एक व्यक्ति है। जैसे हम वीमेंस डे को इतना सेलिब्रेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हम मेंस डे को इतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, दो मेंस की लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो कितना ज़्यादा बर्डन अपनी ज़िंदगी में सहते हैं, उनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक, तो उनको भी, वो भी मेंटली परेशान होते हैं, तो उनको ऑनर करने के लिए, उनको अपना एक लव शो करने के लिए हम इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व करते हैं 19 नवंबर को। और थीम क्या रहेगी इस बार? वो है हेल्पिंग मैन एंड बॉयज़। ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल मैन डे की, जो कि हम 19 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे हम 19 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, एंड एज द नेम सजेस्ट, रीज़न क्या है? वीमेंस को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अवेयर कराना, इनको बताना कि बिजनेस कैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं, कहाँ से फंडिंग लाएं, फिर उस फंडिंग को कैसे हम यूज़ करें, उस फंडिंग को, जो पैसे हमने सेविंग की, जो हमने पैसे कमाए, उसकी सेविंग करके हम कैसे उसको ग्रो करें। इन सारी चीज़ों को हेल्प करने के लिए, वीमेन को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, वीमेन को बिजनेस की तरफ एक शो कराने के लिए, एक पाथ दिखाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी के लिए 2022 में एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था, वो है चूज वीमेन। ठीक है, ये हाईलाइट करता है बिजनेसेस एंड स्टार्टअप दैट आर लेड बाय वीमेन टू रिसीव द स्पॉटलाइट एंड सपोर्ट दे डिजर्व। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑर्गेनाइजेशन की, तो फाउंडर कौन रहेंगी? वेंडी डायमंड। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? यूनाइटेड नेशंस का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यूयॉर्क, यूएसए में। नेक्स्ट आप पिक्चर में किनको देख रहे हैं? इंदिरा गांधी जी को। क्या आपको इंदिरा गांधी का पूरा नाम पता है? इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। किनकी बेटी थी ये? जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, और यही पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी इंडिया की। ठीक है, और इनके फादर जवाहरलाल नेहरू, वो कौन थे? वो लार्जेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक, हम बात कर रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे की।
नेशनल इंटीग्रेशन डे 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और याद रखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन डे को ही हम कौमी एकता दिवस के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, कौमी एकता दिवस या नेशनल इंटीग्रेशन डे 19 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जिनको हम इंदिरा गांधी के नाम से भी फेमसली जानते हैं। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा। फिर इसके बाद आ जाता है 2022 में हमने कौन सा डे ऑब्जर्व किया, मतलब कौन सी एनिवर्सरी थी ये इनकी इंदिरा गांधी जी की। तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी जी की ये 105th बर्थ एनिवर्सरी थी 2022 में जो हमने ऑब्जर्व करी। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर अगर इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ देखी जाए, जैसे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी पार्ट रह चुकी हैं। ये किनकी बेटी हैं? जवाहरलाल नेहरू की ये बेटी हैं। फिर इसी के साथ साथ इनका पूरा नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। और एक चीज़ और क्या कि इनके डे को ही कौमी एकता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर को हुआ था इन 1917, जो कहाँ पे था, जिसको इलाहाबाद कहते थे लेकिन अब वो प्रयागराज हो गया। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? यूपी में। ठीक, चलिए। और ये प्राइम मिनिस्टर कब बनी थी? 1966 में। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस। ये डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 18 नवंबर को हमें ये डे ऑब्जर्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 18 से 24 नवंबर के बीच में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड बेसिक रीज़न क्या है? एक टर्म आ जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पहले तो ये देख लेते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली जब कोई भी आपका बैक्टीरिया या आपका वायरस, फंजाई या पैरासाइट ये रेजिस्टेंस बना ले अपनी वैक्सीन के खिलाफ। मतलब आप इनको वैक्सीन दे रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा कि लोगों बोल रहे, सरकार और सब लोग बोलने लग रहे थे कि इन्होंने वैक्सीन के खिलाफ रेजिस्टेंस बना ली है कोविड-19 ने। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैक्सीन हम उनको दे रहे हैं, जो दवाई हम उनको दे रहे हैं, उसका कोई असर नहीं हो रहा बैक्टीरिया पे, क्योंकि वो इवॉल्व हो चुका है। तो ये होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो याद रखेंगे, हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 18 से लेके 24 नवंबर के बीच में, ताकि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना उसको प्रिवेंट कर सकें टुगेदर। और इसी के लिए ये थीम ऑब्जर्व की गई इस बार 2022 में, वो थी प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये डे किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? WHO के द्वारा इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। डायरेक्टर जनरल रहेंगे डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस और हेडक्वार्टर रहेगा इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आ जाता है ओडिशा की बात करेंगे। ओडिशा के द्वारा 2-3 अच्छी चीज़ लॉन्च की गई हैं, उनको ध्यान में रखेंगे। जैसे सबसे पहले मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। इस मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना के अंडर बेसिकली क्या है कि हेल्दी कंपटीशन एंकरेज किया जाएगा बिटवीन द स्टेट स्कूल्स एंड रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन एजुकेशन। मतलब स्कूल्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन कराया जाएगा, जिसके बेसिस पे जो बच्चे हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, उनको कंपटीशन है तो वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, टीचर्स मेहनत करेंगी, तो इससे क्या हुआ? एजुकेशन में बढ़ावा आएगा। फिर वहीं पर आपको बच्चों को अगर कुछ प्राइज़ प्रोवाइड किया जाएगा, टीचर्स को, आपका SMCs को कुछ अमाउंट का प्राइज़ प्रोवाइड किया जाएगा, तो इससे वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे टू वर्क इन अ बेटर वे। ऑलराइट, तो यहीं पर आप देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना है, इसके अंडर 100 करोड़ रुपीस को डिसबर्स किया जाएगा पर ईयर, जो कि एनुअल अवार्ड्स के तौर पे दिए जाएंगे स्कूल के बच्चों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ को, एंड जो भी एजुकेशन या फिर जो भी डिपार्टमेंट इनको रन कर रहा है। इससे क्या होगा? जो स्टेट में एजुकेशन लिटरेसी ना उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। जैसे अगर देखें तो अवार्ड ये दिया जाएगा टू अराउंड 50,000 टीचर्स, 50,000 स्टूडेंट्स, 1500 प्रिंसिपल्स को, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज को, एंड एवरी एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, तो ये थी आपकी मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। यहीं पर अगर मैं बात करूं गवर्नर कौन रहेंगे ओडिशा के, वो है गणेशी लाल जी।
लखारी वैली सेंचुरी, ये आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि ओडिशा में ही लोकेटेड है। ठीक है, फिर यहीं पर याद रखेंगे चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक डिजी लॉकर भी अरेंजमेंट को भी लॉन्च किया गया, तो ताकि जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे हैं वो अपनी मार्कशीट को, सर्टिफिकेट्स को इस वर्चुअल लॉकर के थ्रू एक्सेस कर सकें। फिर यहीं पे एक चीज़ और याद रखेंगे, प्रारंभ एक ओडिशा की स्टेट पॉलिसी है फॉर चिल्ड्रन जो कि लॉन्च की गई चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों के फोकस रहेगा एजुकेशन के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करना यहाँ मैटर रहेगा। यहाँ पे रहेगा कि बच्चों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को कैसे उनके डेवलपमेंट की जा सके, कैसे हम उनको एजुकेशन के थ्रू और आगे बढ़ाने में मदद कर सके हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, क्लीन टेक, एरोस्पेस की बात की जाए, कैसे कोई भी फील्ड हो जाए, वहाँ पर बच्चों को हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और उनको एक बेटर तरीके से, एक और अच्छे तरीके से एक ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाना है जहाँ पे उनका जो डेवलपमेंट हो वो बहुत अच्छे से हो सके। जैसे एजुकेशन हो गया, फिर बात की जाएगी यहीं पे सर्वाइवल की, जहाँ पे हेल्थ न्यूट्रिशन की बात हो जाती है, फिर फैमिली केयर की बात हो जाती है, फिर जो वनरेबल चिल्ड्रन होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं उनकी बात की गई यहाँ पर। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये आपका प्रारंभ नाम की एक स्टेट ओडिशा स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2022 को लॉन्च करा गया। ठीक, चलिए, तो दोस्तों ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। इंडिया का नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली और दूसरा डेनमार्क का म्यूजियम कोल्डिंग, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ कि 200 के करीब सिल्वर आर्टिफैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं उनको शोकेस किया जाएगा इन एन एग्जीबिशन जो कि होगा मार्च 2023 में। NESTS और 1M1B फाउंडेशन के साथ इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया ताकि टीचर्स को ट्रेन किया जा सके, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा सके ऑफ EMRAS। फिर इंडिया ने लॉन्च की एक ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SCO फॉर 2023 जो है फॉर अ सिक्योर SCO। CEC राजीव कुमार ने इनॉग्रेट की एक 2 दिन लंबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। SLIC गेट्स PFRDA नॉट टू बिकम एन एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। नवी एंड पिरामल फाइनेंस ये एंटर करते हैं को लैंडिंग पार्टनरशिप में। JKRLM इन्होंने एक साइन किया एक एग्रीमेंट विद मीशो टू एम्पावर 1800 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। महिंद्रा ग्रुप ने पार्टनर किया बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ ताकि वीमेन एम्पावरमेंट में बढ़ावा देखने को मिल सके। इंडिया ने जीता एक्सेल अवार्ड जो किया फॉर लीडरशिप इन द फैमिली प्लानिंग। पटाया थाईलैंड में इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये ओनली कंट्री थी जिनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। हार्पर कॉलिन इंडिया इन्होंने जीता पब्लिशर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। कथक वेटरन उमा शंकर इन्होंने जीता सुमित्रा चरित राम अवार्ड क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन था डांस एंड म्यूजिक के लिए उसके लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ ED चीफ संजय मिश्रा कुमार फॉर 1 ईयर और ये इनका 5वां साल रहेगा एज द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के चीफ के तौर पे। वर्ल्ड टॉयलेट डे हम 19 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व करते हैं 19 नवंबर को। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑब्जर्व करते हैं 19 नवंबर को। नेशनल इंटीग्रेशन डे ऑब्जर्व करते हैं 19 नवंबर को। तो ये 4 डे याद रखने हैं जो हम 19 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाता है पहला वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज एंड वायलेंस 18 नवंबर 2022 को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक हम 18 से लेके 24 नवंबर के बीच में ऑब्जर्व करते हैं और इस बार की बेसिक थीम क्या थी कि जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो पैरासाइट ऐसे होते हैं जिन पे अफेक्ट नहीं पड़ता कोविड-19, जिस पे अफेक्ट नहीं पड़ता कोई भी वैक्सीन का, ठीक है, उनके खिलाफ हम वर्क करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना और इन्हीं के द्वारा याद रखेंगे प्रारंभ नाम की भी एक ओडिशा स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2022 को लॉन्च करा गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो अगर चीज़ें याद हैं तो आइए अब आते हैं आपके होमवर्क सेशन पे। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया इज सेट टू अनवेल यंग प्रोफेशनल स्कीम विद विच कंट्री। सेकंड, रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट ये एसोसिएटेड है किस कंट्री के साथ।
Third, Donny Polo Airport has been inaugurated in which state and union territory? C. C.V. Ananda Bose has been appointed as the governor of which states? और पांचवा, which state hosted the second edition of the North East Olympic Games 2022 में? तो दोस्तों ये थे हमारे 5 होमवर्क क्वेश्चंस। कोई चीटिंग नहीं करेगा, आंसर कॉपी पेस्ट भी नहीं करेंगे। नहीं आता तो कोई बात नहीं, गूगल पे जस्ट आंसर को लिखिए और आपको उससे रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। उन आर्टिकल्स को पढ़िए। जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी उसमें। ऑलराइट, ऑल्सो दोस्तों अगर सेशन पसंद आया तो इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। नए स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। हम वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम अपलोड करते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपके जो भी ऐप्स आती हैं, नई वेब पोर्टल जो रिलीज़ किए जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, इम्पॉर्टेंट डेज हो कोई भी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, हम सारा कंटेंट टॉपिक वाइज भी हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई टॉपिक आपके लिए अपलोड करते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत हेल्पफुल हो सके। इसी के साथ साथ जो दोस्त जिन्होंने हमारी अभी 3 मंथ्स की 1 लाइनर्स की इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो वो जल्दी से जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पर देखिए। हमने पिछले 3-3 महीने करके बहुत ही अच्छा सेशन अभी अपलोड किया है, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.